So in the previous class we were discussing about the circular system of angle measurement. Then we have derived the result angle in terms of radian is given by arc upon radius, and we were discussing some of the question based on that. Today we will be taking some of the questions which are based on the identities of class 10th basic level की बात करेंगे. The question is, a horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describes 88 meters when it has stretched out 72 degree at the center, find the length of rope. So a horse is tied to a post by a rope, and if the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, ठीक है, and describes 88 meters when it has stretched out 72 degree at the center, and find the length of rope. rope की length required है, इसका सीधा सा मतलब है क्या required है, तो length of rope है ना. ये तो horse move कर रहा है circular path के ऊपर, and always keeping the rope tight, and describes 88 meters when it has stretched out 72 degree at the center. और length of rope required है, that means radius is required there. 88 meters describe कर रहा है when it has stretched out 72 degree at the center. इसका क्या मतलब हुआ, 88 हाँ will be the arc और डिग्री के टर्म्स में दिया एंगल थीटा इज गिवन है 72 डिग्री at the center. This is somewhere 72 degree like this. Theta is given as 72 degree. Radius that we have to find out, and arc is AA dash, which is of 88 meters. जो आर्क की लेंथ है वो 88 मीटर्स है. तो सबसे पहले बात तो ये कि यह समय क्लियर हो जाता है दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बट फॉर दैट थीटा मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन. थीटा रेडियन के टर्म्स में होना चाहिए, और थीटा रेडियन के टर्म्स में होना चाहिए तो 72 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लोगे तो इट विल बी व्हाट in terms of radian, that we have discussed that pi radian is equals to 180 degree. So 180 degree equals to pi radian, so 72 degree is going to be equals to what? 2 pi by 5. Okay, बढ़िया. So it is 2 pi by 5 is equals to arc that is of 88 meters, and radius that we have to find कितनी rope लगने वाली है ना. So r will be equals to, okay, solve कर लिया आपने, ठीक है. 88 divided by 2 pi into 5, and that radius is coming as 17, 70, ठीक है. बट बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि whenever you are using this formula theta is equals to arc upon radius, just take care that okay, theta is given in terms of radians. Now the question is, the angles of a triangle are there in AP. The number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest is given as 60:pi. That ratio is given as 60:pi. You have to find out the angles in degrees. So angle of triangles are there in AP. AP में दिए angle of triangle, you can take the angles as A minus D, A and A plus D. Angle of triangles can be taken as 3 terms are there in AP, so you can take that those terms as A minus D, A and A plus D. So A minus D, A and A plus D, these are the angles of triangle. अब ट्राइंगल के एंगल से तो यहाँ पर मैं इतना कह सकता हूँ that A minus D plus A plus D इज इक्वल टू पाई रेडियन और 180 डिग्री. डिग्री के टर्म्स में लिखोगे तो 180 हो जाएगा. डी जब कैंसिल होगा तो यू विल बी गेटिंग 3a, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यू कैन से a इज इक्वल टू 60 डिग्री. इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर आप कहेंगे तो रेडियन के टर्म्स में अगर देखेंगे दैट विल बी
π/3 रेडियंस। अब उसने कहा है कि द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट इज 60 पाई। क्या समझते हो इससे? लीस्ट जो एंगल है वो क्लियरली ए माइनस डी है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है ए प्लस डी। लीस्ट एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री ए माइनस डी, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा आपको? ए प्लस डी इंटू पाई बाय, पक्का, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो कहा गया ना आपसे, नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए माइनस ए प्लस डी जो एंगल होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, उल्टा नहीं बोल रहे हो तुम लोग? पाई बाय 180 या 180 बाय पाई? सोच लो। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, तो जो लीस्ट एंगल है वो तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री दिया हुआ है आपको, ए माइनस डी, ठीक है, अच्छी बात है। और जो नंबर ऑफ इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, नंबर ऑफ रेडियंस इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल तो इसमें ए प्लस डी होगा, रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है वो एंगल, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, 180 बाय पाई। सोच लो यार। और वो रेशो दिया है 60 पाई। ये वाला जो एंगल है दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और ये एंगल जो गिवन है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, और 60 पाई के टर्म्स में दिया है, दैट इज गिवन है 60 अपॉन पाई। तो दोनों को एक यूनिट में तो कन्वर्ट कर लो, ये डिग्री के टर्म में और ये रेडियन के टर्म में। बट स्टिल देर इज सम कंफ्यूजन, 180 बाय पाई या पाई बाय 180, क्या करने का? हाँ, क्या होगा? पर क्यों? हाँ, नहीं, वो जो होता है वो ये होता है दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो ए प्लस डी जो है वो दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो ए प्लस डी की अगर आप बात करोगे इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, दैट विल बी 180 बाय पाई इंटू ए प्लस डी। अगर इस ढंग से देखोगे तो बोले सर रिजल्ट नहीं आएगा वैसा करने पर, पाई कैंसल नहीं होगा। थोड़ा सा सोचिए, जस्ट टेक सम टाइम। So what we have done there, that according to the question, three angles are there in AP. So we have taken A minus D, A and A plus D, and we have taken the summation as 180. 180 we have taken in terms of degrees. ये डिग्री के टर्म में लिया हुआ है, ठीक है। A minus D लीस्ट है और A plus D ग्रेटेस्ट है। A is the mean एंगल ऑफ दैट। A वहाँ से कैलकुलेट किया हमने, इस कमिंग है 60 डिग्री, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट। अब नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, तो हमने लिया जो एंगल है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, दैट वी हैव टेकन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ओनली। तो ए माइनस डी अपॉन नंबर ऑफ रेडियन इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट। लेकिन हमने जो ए प्लस डी लिया है दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ डिग्री। डिग्री को हमें रेडियन के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्यों पाई बाय 180, ये बात क्लियर होना चाहिए थी। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री दैट विल बी पाई अपॉन 180। तो ए प्लस डी जो है दैट वी वांट इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, पाई बाय 180, एंड दैट इज गिवन एज व्हाट, 60 पाई। दैट इज द रीजन। नाउ यू विल बी गेटिंग दैट ओके दिस पाई इज बीन कैंसल्ड देयर, ये पाई कैंसिल हुआ है। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू ऑलरेडी नोन है आपको, दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री। व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर डी? आप तो कर सकते हैं, ये 180 है तो ये 60 और 180 कैंसिल होगा तो दैट विल बी 3। क्या वैल्यू आ रही है डी की? आप इधर आ जाओ पर, हाँ, डी की क्या वैल्यू आ रही है? 15। बैठ जाओ पहले बीच में। What value you are getting for D? 15। तो A की वैल्यू 60 आ रही है और D की वैल्यू 15 आ रही है। तो अब वो सारे एंगल्स रिक्वायर्ड है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। 60 डिग्री
वैल्यू ऑफ ए माइनस डी 45 डिग्री और ए प्लस डी 75 डिग्री। वही क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक ढंग से पढ़ने की बात है। नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज टू नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, लेकिन हमने ए माइनस डी ए प्लस डी जो लिया है दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई इट इज ए प्लस डी इंटू पाई बाय 180। ये तो हमें समझ में आ रहा था कि 60 पाई है, पाई कैंसिल होगा तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज वो कैसे रिजल्ट आता, बट ठीक है। और ये अगर ये डिग्री के टर्म में आ गए तो वी कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ रेडियन, रेडियन के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। So calculation mistake is there, d is coming as 30 पक्का। So if d is coming as 30, now the angles would be changing there, क्या हो जाएंगे एंगल्स, 60 डिग्री तो मीन एंगल है, 60 प्लस 30 90, 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। Now we'll be taking some of the questions based on the identities ना, sin square theta plus cos square theta equals to 1, 1 plus tan square theta equals to sec square theta and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Based on that identities we'll be discussing some of the questions of class 10th. Yes, these are there in class 10th also. The first one, sin theta plus cosec theta whole square plus cos theta plus sec theta whole square if I solve the LHS. LHS अगर solve करते हैं तो you are going to get sin square theta a plus b whole square is there, a square plus b square plus 2ab। दोस्तों 2ab को 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, because sin theta into cosec theta that will become 1 plus cos square theta plus sec square theta plus 2, because a square plus b square plus 2ab और cos theta into sec theta will become 1, so ठीक है, so it can be written as, अच्छा at the same time sin square theta plus cos square theta this is also going to become 1। इसकी अगर मैं पेयरिंग कर लेता हूँ, this 2 plus 2 4 is already there plus cosec square theta is there, तो परेशानी नहीं है, 1 plus cot square theta, simple question, and sec square theta is there, तो 1 plus tan square theta, so yes we are getting sin square theta plus cos square theta is 1, so 4 plus 1 is 5 plus 1 6 plus 1 7, it will become 7 plus tan square theta plus cot square theta, easily you are getting the result। Now think about the second one। Now you have to prove the second one, tan theta plus sec theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 is 1 plus sin theta upon cos theta। देखिए ट्रिगो के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई एक अप्रोच ऐसा जरूरी नहीं है, देयर कुड बी मेनी अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्रिगो। एक ही सवाल को अलग अलग कई सारी अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है, दोज आर करेक्ट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट जो क्वेश्चन है दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एंड sec थीटा, राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। सो एक जो बात कहीं ना कहीं आती है कि सर sin cos में कन्वर्ट कर लें, कर तो सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, और नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है, बट sin cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। इफ यू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos, LHS अगर आप लिखते हैं तो sin थीटा बाय cos थीटा 1 बाय cos थीटा माइनस 1, आफ्टर टेकिंग द LCM इट विल बी sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होगा, डिनोमिनेटर को भी आपने sin cos में कन्वर्ट किया, तो sin थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि बोले सर cos थीटा कहाँ गया, तो कैंसिल हो गया, बिकॉज आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को sin cos में कन्वर्ट कर लिया। बट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, बात फिर से अटक जाती है। यहां पर फिर कुछ ढंग से सोचना पड़ेगा आपको कि sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करना पड़ेगी, डायरेक्टली तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पर, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल। एक और बात जो यहाँ पे की जा सकती है और वो ये की जा सकती है
इसको भी जरूर बना के देखिए। मैंने आपसे यही कहा, शुरुआत में कहा कि ट्रिगो के क्वेश्चंस कर रहे हैं, देयर कुड बी मेनी अप्रोच टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो सकता है बिल्कुल कई अलग अलग तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बात कही, बिल्कुल करना होगा यहाँ पर, लेकिन मैं एक कलाकारी करता हूँ। द इनिशियल क्वेश्चन tan थीटा प्लस sec थीटा, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस में चेंज नहीं किया, और मैंने क्या किया यहाँ पर -1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को रिप्लेस कर दिया गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। इस 1 को चेंज किया। बोले सर डिनोमिनेटर में चेंज करना क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो sec square theta minus tan square theta, that will be a square minus b square, that will be a plus b, a minus b। लिख सकते हैं ना, a square minus b square which is a plus b into a minus b। बोले सर उससे क्या होगा, क्या होगा, क्या लगता है आपको? tan theta plus sec theta, और यहाँ पर sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta। You can take tan theta plus sec theta common out of that numerator। समझ रहे हो क्या भाई? a square minus b square, इस 1 को रिप्लेस की, इसीलिए हमने sec square theta minus tan square। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस ऑफ, हियर इट इज sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अभी समझ में आ गया क्या? यू कैन टेक फ्रॉम द न्यूमरेटर tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन, so it will become 1 minus of sec theta minus of tan theta divided by tan theta minus sec theta plus 1। 1 minus sec theta plus tan theta, ये 1 minus sec theta plus tan theta कैंसिल होता है यहाँ से, तो 1 minus sec theta plus tan theta कैंसिल हुआ, तो what you will be getting? You will be getting tan थीटा प्लस sec थीटा, राइट। और tan थीटा प्लस sec थीटा अगर आ रहा है तो अब इसको जरा साइन कॉस में ले आओ, यू विल बी गेटिंग दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस sec थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, एंड टेक द एलसीएम देयर, यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। अब बात आती है ये कैसे सोचा कि 1 को रिप्लेस करना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। मैंने आपको एक बात यहाँ पे शुरुआत से क्लियर कर रहा हूँ, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी, एंड देयर आर गोइंग टू बी मेनी अप्रोच जो आप इसमें सीखोगे आप, एंड देयर कुड बी वेरियस वेज टू सॉल्व वन क्वेश्चन। कई सारे तरीके होंगे उसमें, तो उसमें परेशान नहीं होना है आपको, उसको सीखना है कि यार ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसको भी प्लान कर सकते हो आप, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। यू कैन थिंक अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय सम नंबर दैट मीन्स सम फैक्टर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो दैट वो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में कहीं कुछ कन्वर्ट हो। ठीक है, करके देख सकते हैं। नाउ अगेन टू क्वेश्चंस आर गिवन टू यू। If sec theta plus tan theta is given as lambda, you have to obtain sec theta, tan theta, sin theta, cosec theta in terms of lambda. And the second one, sin theta plus cos theta is given as m, and you have to find out sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta. So first one, sec theta plus tan theta आपको given है, और वो सारे एंगल्स पूछता है आपसे, sec theta, tan theta, sin theta, cosec theta in terms of lambda। क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या अप्रोच होना चाहिए? सभी लोग सोच सकते हैं, और वो इसलिए सोच सकते हैं कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इटसेल्फ, इफ यू रिमेंबर दैट वी हैव यूज्ड इन प्लेस ऑफ 1 वी हैव केप्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 को हमने रिप्लेस किया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से। sec थीटा प्लस tan थीटा इज गिवन हियर, एंड रिमेनिंग एंगल्स या sec थीटा, tan थीटा, sin थीटा, cosec थीटा इज रिक्वायर्ड। व्हाट वी हैव डन देयर, sec square theta minus tan square theta, yes it is equals to 1,
सेक स्क्वायर, अब आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। अब नई बात नहीं होना चाहिए बिकॉज इन द प्रीवियस क्वेश्चन इटसेल्फ यू हैव यूज्ड दैट रिजल्ट। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा is equals to 1. So what you are going to get? You are going to get sec theta minus tan theta is equals to 1 by lambda. Sec theta minus tan theta is equals to 1 by lambda. And sec theta plus tan theta. भाई हमने sec theta plus tan theta equals to lambda. That lambda we have kept here. So we will be getting 1 by lambda. Sec theta minus tan theta. और sec theta plus tan theta ऑलरेडी अवेलेबल है आपको, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा। दो इक्वेशन दो अननोन के टर्म्स में हो गई बात। sec theta minus tan theta is coming as 1 by lambda and sec theta plus tan theta is coming as lambda. So if you are interested in finding out remaining angles, yes you can. एक बार अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, if you add these two, on adding these two you will be getting 2 sec theta is equals to 1 by lambda plus lambda. That is nothing but the sec theta. You are getting sec theta in terms of lambda, right? अगर आप subtract करते हो, if you subtract, अगर आप subtract करते हो तो you will be getting sec theta minus tan theta minus of sec theta minus tan theta. Sec theta cancel होगा तो minus of 2 tan theta is equals to 1 by lambda minus of lambda, or you can say that 2 tan theta is equals to lambda minus of 1 by lambda. तो 2 sec theta आपको मिल गया 1 by lambda plus lambda, और 2 tan theta आपको मिल गया lambda minus 1 by lambda. sec theta और tan theta अगर आपको मिल गए, you can find out remaining angles. ट्राइंगल में अगर sec theta पता है आपको, तो sec theta पता है तो you will be getting the cos theta. sec theta का रेसिप्रोकल लोगे तो you will be getting cos theta. tan theta का रेसिप्रोकल लोगे you will be getting the cot theta. बोले सर साइन थीटा भी पूछा है तो भैया पूछ लेना, क्या दिक्कत है ना। tan थीटा इज नोन टू यू, यू कैन कैलकुलेट साइन थीटा। tan थीटा विच इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और उसमें आप अगर tan थीटा को sec थीटा से डिवाइड कर दोगे, tan थीटा अवेलेबल है तुम्हारे पास, sec थीटा अवेलेबल है, कहाँ दिक्कत है? कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं हुई है तो कुछ भी, है ना। इजीली यू कैन फाइंड आउट। साइन थीटा आएगा तो यू कैन टेक द रेसिप्रोकल, यू विल बी गेटिंग द cosec थीटा। बट ओनली पॉइंट हियर इज, क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग पॉइंट इसका, दैट ओके करना क्या, हाउ टू प्रोसीड फर्दर, बाकी तो काम हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करना आवश्यक है कि यार ओके वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की हेल्प ली हमने, sec थीटा प्लस tan थीटा इज गिवन टू यू। तो a प्लस बी, a माइनस बी की हेल्प लेते हुए हमने sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। sec थीटा प्लस tan थीटा को लैम्डा पुट किया एंड वी गॉट sec थीटा माइनस tan थीटा इज 1 बाय लैम्डा। दैट इज अप्रूव्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज गिवन एज m, sin theta plus cos theta is m, and you have to find out, yeah, you have to prove that sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta is equals to 4 minus 3 times m square minus 1 whole square upon 4. देखिएगा, sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta is required and sin theta plus cos theta is been given to you. क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? sin theta plus cos theta अवेलेबल है, sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta, that can be written as लिख सकते हैं सर, sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta, तो sin square theta whole cube plus cos square theta whole cube, it is nothing but a cube plus b cube, और a cube plus b cube को हम लिख सकते हैं ठीक है ना, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, कुछ खास बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ा है आपने, खूब रूट्स के बारे में भी डिस्कशन किया है। तो साइन स्क्वायर थीटा एंड होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, प्लान ही इसीलिए किया था हमने। तो इट विल बिकम 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगेन यू केप्ट 1, बट बोले सर रिजल्ट कहाँ आ रहा है, रिजल्ट इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ एम। आपको कुल मिला के यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना है, रिजल्ट एम के टर्म्स में लेके आना है। क्या किया जाए सर? हाउ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज गिवन एज एम, क्योंकि हम यहाँ पे अटक गई बात। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज देयर, ठीक है कोई बात नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ऑन स्क्वायरिंग। कैसे सोच रहे हैं? दैट इज योर ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर प्रैक्टिस ओनली, दैट इज गोइंग टू गिव यू द हिंट्स कि यार क्या प्रोसीड करना है। ऑन स्क्वायरिंग इट विल बिकम, डायरेक्ट लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड स्क्वायर ऑफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 2 cos theta is equals to m square, right? 2 sin theta cos theta is equals to m square minus 1। दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा, you will be getting the value of sin theta cos theta which is m square minus 1 by 2, और ये आ रहा है sin square theta cos square theta, just do the square of that। साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया आपको इधर से एम स्क्वायर माइनस 1 by 2, that will become 1 minus 3 times sin theta cos theta which is m square minus 1 by 2 n square of that, which is nothing but 1 minus 3 times m square minus 1 whole square divided by 4, that is the result। Now you have to prove that root over 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equals to sec theta minus tan theta। Elementary questions are there। क्या करना होगा? Rationalization, that means multiplication division by right root over 1 minus sin theta से multiplication as well as division, so that 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, that will become 1 minus sin square theta a plus b a minus b a square minus b square। It is 1 minus sin root over 1 minus sin theta into root over 1 minus sin theta। in fact ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ठीक है, और यू कैन से 1 minus sin theta and whole square of that। it will become 1 minus sin theta upon cos square theta, but cos square theta का स्क्वायर रूट लिया जाएगा, that will be equals to 1, sorry cos square theta का स्क्वायर रूट that will be cos theta, that will be equals to 1 minus sin theta by cos theta, that is sec theta minus tan theta। And exactly on the same lines you are going to proceed for the second one। You are going to multiply and divide here by 1 plus cos theta root over 1 plus cos theta। It will become root over 1 plus cos theta into root over 1 plus cos theta, which is 1 plus cos theta divided by root over 1 minus cos square theta is equals to 1 plus cos theta upon 1 minus cos square theta, that will be sin square theta, and square root will be sin theta, will be equals to cosec theta plus cot theta। That is the approach।
Now the question is, in fact there are 3 questions and all the 3 questions are same. Those are elimination of theta. You have to eliminate theta. The first one, x equals to a sin theta, y equals to b tan theta. Likewise second one, third one. Elimination of theta, that means the final result must not contain any terms of theta. Sin theta, cos theta, tan theta must not be there. The final result must be there in terms of x, y and ab. If I talk about the first one, तो थीटा एलिमिनेट करना कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पर. क्यों नहीं है देखिएगा. इसे इट इज फर्स्ट वन, x is equals to a sin theta, y is equals to b tan theta. Tan theta can be written as sin theta by cos theta. बोले लिख सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और उसको सेकेंड में प्लेस किया आपने. इनफैक्ट दैट विल y by b is equals to sin theta, that is x by a cos थीटा. बोले सर इससे क्या होगा. यहां से आपको sin थीटा की वैल्यू अवेलेबल है विच इज x by a और यहां से यू विल बी गेटिंग cos थीटा. दैट cos थीटा इज कमिंग एज bx अपॉन ay. चेक करिएगा. राइट. सो यू आर गेटिंग sin थीटा. sin थीटा इज ऑलरेडी देयर इन फैक्ट x by a और sin थीटा को सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड में प्लेस कर दिया तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा. और sin थीटा cos थीटा अवेलेबल है एंड आपसे कहा जाता है एलिमिनेट थीटा, तो हो गया यार. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. उसमें कहाँ दिक्कत है. एलिमिनेशन ऑफ थीटा इज रिक्वायर्ड, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज b स्क्वायर x स्क्वायर upon a square y square is equals to 1. That is nothing but the elimination. बोले सर x square by a square कॉमन आ रहा है, आने दीजिएगा. ठीक है, वो तो फर्दर सॉल्व किया जा सकता है. That's how we are going to eliminate. This is the result which is not containing any term of theta. यहाँ कोई sin theta cos theta नहीं है. तो सिंपल है. sin theta था, cos theta फाइंड आउट किया और sin square theta plus cos square theta 1 किया. Likewise if you observe the second one, सेकेंड को अगर आप ऑब्जर्व करो तो शायद बहुत आसानी से समझ में आती है बात कि फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू a cos थीटा, तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू x by a एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा. तो sin थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू y by b. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू x by a और sin थीटा इक्वल्स टू 1 y by b. स्क्वायरिंग एंड एडिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इट इज x स्क्वायर by a स्क्वायर plus y square by b square is equal to 1 and that's how you are going to eliminate. Simple. Think about the third one. Now third question based on the elimination of theta. A sec theta plus b tan theta plus c equals to 0 and p sec theta plus q tan theta plus r equals to 0. क्या लगता है अब आपको? In fact if you just observe here, elimination of theta, that means the result is going to be in terms of a, b, c and p, q, r. At the same time you should be getting the hint from the question itself that okay, sec theta and tan theta is there and we are going to use here sec square theta minus tan square theta as 1. In fact these are nothing but the two linear equation in terms of sec theta and tan theta, or as a linear equation you can solve these two equations. कहाँ दिक्कत है, कर सकते हैं ना. linear equation solve करना तो हम जानते हैं. If you consider sec theta as x and tan theta as y, so it will be ax plus by plus c equals to 0 or px plus qy plus r equals to 0. Linear equations, and you can find out x and y. पक्का ना. और x और y फाइंड आउट कर लिया मतलब sec theta tan theta फाइंड आउट कर लिया, उसको प्लेस कर दीजिए इधर पे, खत्म. भाई sec theta और tan theta है, एलिमिनेशन ऑफ theta इज रिक्वायर्ड. So we can think about sec square theta minus tan square theta equals to 1. और इन दोनों इक्वेशन से दो अननोन से sec theta tan theta आ जाएंगे. और we can also take the help of cross multiplication method. During the condition of common root, I explained you the condition of cross. Yeah, we have discussed about the cross multiplication method which is there in class 10th.
You can write like this. So how you are going to write this? देखिएगा sec theta upon, तो sec theta upon you are going to write, इसको हाइड किया आपने, br minus cq. You can solve it like linear equations also. sec theta को x लिया, tan theta को y लिया आपने, तो ax plus by plus c equals to 0 and px plus qy plus r equals to 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज अगेन देयर इन क्लास 10th. कहाँ दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए ना. तो tan थीटा अपॉन जब लिखेंगे तो ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग AR फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट CP माइनस AR एंड 1 अपॉन AQ माइनस BP. ठीक. If you take this pair, you will be getting sec theta dr minus CQ divided by AQ minus BP. And if you take the second pair, you will be getting tan theta CP minus AR upon AQ minus BP. sec theta and tan theta, so sec square theta minus tan square theta equals to 1. प्लेस कर दीजिए वैल्यूज. That's how you are going to eliminate. ये हो गया एलिमिनेट. रिजल्ट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ ABCPQR. बोले सर काफी बड़ा आ रहा है, आने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आपका टारगेट था एलिमिनेट करना है, थीटा थीटा हो गया एलिमिनेट. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वाड्रेंट सिस्टम. क्लास 10 तक जो आप पढ़ते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को डिस्कस करते हैं, बट नाउ विल बी डिस्कसिंग फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या सिस्टम होता है, कैसे किन एंगल्स को पॉजिटिव लेना, किन नेगेटिव लेना और क्यों, बड़ी ध्यान से देखिएगा. If angle is there in any first quadrant, let's say this is theta angle, this is the initial line, this is the terminal line. If I take any point, let's say P point on that terminal line, P point से perpendicular drop किया on the x-axis, let's say it is M, it is X, it is Y, it is R, distance R, OP. जो भी पॉइंट ले रहा हूँ मैं P पॉइंट, that P point is nothing but X, Y, और OP की जो डिस्टेंस है that is equals to R, है ना, that's a fixed value. OP is equals to R. If I had to calculate sin theta here, तो sin theta की बात बोले सर आइडिया है, होना चाहिए. Sin theta will be equals to y by r and cos theta is equals to x by r. And if sin theta and cos theta are known to you, remaining angles you can find out. And at the same time जो आप observe करोगे यहाँ पर वो ये observe करोगे that x is positive here, y is positive here, r is already been positive because r is the distance of the two points O as well as P के बीच के distance से r. Distance is always taken as positive. In fact, if we talk about to find out the distance, there is a formula in class 10th to find out the distance between the 2 points. If you remember, what is that formula? x1 y1 x2 y2 are the 2 points there, and if you have to find out the distance, root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई. So as far as first quadrant is concerned, first quadrant में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, as well as r पॉजिटिव है. तो in case of first quadrant में all the angles remains positive. X is positive, y is positive, r is positive. So all the angles are positive in case of first quadrant, all positive. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो भी एंगल होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द पॉजिटिव वैल्यू. आपने देखे थे जो चार्ट बनाते हैं आप लोग, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऑल दोज आर पॉजिटिव वैल्यू, कहीं नेगेटिव वैल्यू नहीं होती. सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का इसका मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट 90 प्लस थीटा. देन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के केस में अगेन इफ आई टेक
any point P, and while taking OP is equals to R, the distance remains same, है ना. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस रहेगा, द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल 90 प्लस थीटा देयर. इस P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. लेट्स से इट मीट्स एट M, वो M पे मीट कर रहा है. व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर दैट इन केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द एंगल थीटा. ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस रहेगा, दिस इज द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस. जो P पॉइंट है, उस P पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंड ट्राइंगल OMP इज बिकमिंग द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, सेकेंड क्वाड्रेंट में x विल बी नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, माइनस एक्स वाई, ठीक है ना. x नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव, y पॉजिटिव. so x नेगेटिव, y पॉजिटिव. व्हाट यू फील हियर, sin थीटा इज इक्वल टू r इज ऑलरेडी ए पॉजिटिव वैल्यू, r हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो sin थीटा is positive there, cos theta negative there, है ना. cos theta because x by r is there. आपको क्या लगता है, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, how many angles are positive in that case? तो sin theta पॉजिटिव है, तो sin theta पॉजिटिव रहेगा because x y is positive there, r is always a positive value. तो sin theta पॉजिटिव है तो cosec theta भी पॉजिटिव होगा. और बाकी जो एंगल्स सेम, बाकी मतलब cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा, all those angles remains negative. So when we talk about the second quadrant, so in case of second quadrant, sin theta and cosec theta is positive, remaining angles are negative because x is negative there, y is positive there. ठीक है ना. If we say about the third quadrant, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये था एंगल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस देयर. So when we say third quadrant के केस में again we have taken some point P, while taking OP equals to R, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर, इट मीट्स एट M, दिस इज थीटा. ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस इज OMP देयर, राइट एंगल ट्राइंगल. इफ यू ऑब्जर्व हियर, x as well as y both are negative here in case of third quadrant के केस में अगर आप देखते हैं, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ x. R is always a positive value, but x and y both are negative value. और x और y अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उस केस में sin थीटा भी नेगेटिव होगा, cos थीटा भी नेगेटिव होगा, sin थीटा भी नेगेटिव होगा. sin और cos नेगेटिव है तो cosec थीटा और sec थीटा भी नेगेटिव होंगे जो उनके रेसिप्रोकल्स हैं. बट इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट दैट वाज देयर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट. यस, फर्स्ट में लिख रहा हूँ बट ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ. चलिए बेहतर होगा यहीं पर लिखूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. This is second quadrant, this is the third quadrant. Sin theta, cos theta negative, but tan theta positive, tan theta positive तो cot theta भी positive. In case of third quadrant, जो भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 प्लस थीटा, इनफैक्ट यू कैन से 180 से 270 के बीच में. फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट मीन्स फ्रॉम 0 टू 90, सेकंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट दैट मीन्स 180 टू 270. इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इफ आई डिस्कस 0 to pi by 2 first quadrant, pi by 2 to pi that will be the second quadrant, and pi to 3 pi by 2 that is going to be the third quadrant. And if I talk about the fourth quadrant, it is going to be from 270 degree to 360 degree.
or from 3 pi by 2 to 2 pi. When I say about fourth quadrant, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल ऑफ रेफरेंस की बात आएगी या ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस इनफैक्ट OPS R again P point perpendicular has been dropped, meet at x axis at M, and this is the triangle of reference. Then ये ध्यान रखिएगा, in case of fourth quadrant x तो पॉजिटिव है but y is negative, or x positive y negative, r is always a positive value. The r is the length distance between the 2 points O as well as P. So x positive है, y negative, I am going to say cos theta big positive here. तो cos theta positive, sin theta definitely would be negative क्योंकि y तो negative है, और cos theta positive है तो sec theta भी positive होगा. And remaining other angles, sin, cosec, tan, cot, all those will remain negative. तो ये सिस्टम यहाँ पे आता है जो अपने को समझ में आना चाहिए कि इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द एंगल्स रिमेन्स पॉजिटिव. इन केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, इन केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव. साइन थीटा पॉजिटिव तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल. इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा पॉजिटिव और टेन थीटा पॉजिटिव तो कॉट थीटा पॉजिटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इन दैट केस कॉस थीटा इज पॉजिटिव एज वेल एज सेक थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग एंगल्स आर नेगेटिव. तो इनफैक्ट इसको ये कहा जाता है, चलिए बताता हूँ मैं, ऑल सिल्वर टी कप से डिनोट कर दें या ऑल स्कूल टू कॉलेज से डिनोट कर दें. जस्ट पहले इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं उसको बता देता हूँ. तो रिजल्ट्स जो हमें मिले वो ये मिले, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है. इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द एंगल्स रिमेन्स पॉजिटिव. इन केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा होगा. टेन थीटा है तो कॉट थीटा पॉजिटिव एंड कॉस थीटा है तो सेक थीटा पॉजिटिव. तो अलग अलग हमने तो ऐसे सीखा ऑल सिल्वर टी कप, है ना, ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव तो कॉसेक थीटा पॉजिटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा पॉजिटिव तो कॉट थीटा पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड कॉस थीटा तो सेक थीटा पॉजिटिव. ऑल स्कूल टू कॉलेज अलग अलग कुछ भी बना लो, पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है. सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल पाई बाय 2 to पाई. थर्ड क्वाड्रेंट दैट मीन्स पाई टू 3 pi by 2, and fourth quadrant it is 3 pi by 2 to 2 pi. ठीक है. But now we'll be discussing some more angles. We are discussing about 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, क्योंकि अब हम सारे quadrants की बात करेंगे. क्लास 10 तक जो आपने डिस्कशन किया that was limited up to the first quadrant, but we'll be discussing now for 90 minus theta, 90, these are the allied angles. 90 minus theta, 90 plus theta, 180 plus theta, 180 minus theta, 270 plus theta, 270 minus theta, 360 plus theta, 360 minus theta. ये समझ में आना चाहिए. I'll be giving you the derivation also somewhere, लेकिन वो तो रिजल्ट्स हैं जो आपको तैयार भी करना पड़ेंगे और रहेंगे तैयार, वो देखिएगा. Again, theta and 90 minus theta. 90 minus theta is clearly angle in the first quadrant. Theta acute angle अगर लिया जाता है तो उस केस में जो 90 minus theta होगा that is always there in first quadrant. This is theta, right? O. We have taken on that terminal line any point P point, right? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपने एक्स एक्सिस के ऊपर. These derivations are not required, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ so that you will be getting the idea कि कैसे रिजल्ट्स लिख दिए गए.
कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने विच मीट्स एट सम एम पॉइंट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, OP is R, this point is x, y. ये तो थीटा एंगल, दिस इज द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस देयर, ट्राइंगल OMP। अभी क्या किया मैंने, वी आर इंटरेस्टेड इन 90 माइनस थीटा, 90 एंड 90 माइनस ऑफ थीटा, मतलब जैसे थीटा थीटा लेट से थीटा इज 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा विल बिकम व्हाट, 60 डिग्री, है ना। तो दिस इज थीटा, वी आर इंटरेस्टेड इन 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, सो ये 90 और 90 से फिर वापस माइनस थीटा, दिस एंगल इज समवेयर थीटा देयर, 90 एंड 90 माइनस थीटा, है ना। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी थीटा, ठीक है। OP डिस्टेंस इज विन R, तो R डिस्टेंस ही लेते हुए हमने क्या किया, इस टर्मिनल लाइन के ऊपर वी हैव टेकन पॉइंट P डैश एंड OP डैश इज अगेन इक्वल्स टू R, OP डैश भी R के बराबर है। वी आर इंटरेस्टेड इन द एंगल 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 और 90 से वापस से बैक हुए आप तो थीटा वापस से, तो वी आर इंटरेस्टेड इन 90 माइनस थीटा, P डैश पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज गोइंग टू, वी आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस देयर, तो इस P डैश पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया which meets at some point, let's say that point is M dash there, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, कैन यू कमेंट ऑन द एंगल, क्योंकि ये सीख जाओगे तो बेस्ट रहेगा, रिजल्ट से वो तो ध्यान रखोगे आप, वो तो अच्छी बात है। एंगल M डैश OP डैश, ये कितना होगा, M डैश OP डैश, एनीबडी, 90 माइनस थीटा यार भाई, दिस इज थीटा, तो दिस मच इज हाउ, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 90 माइनस थीटा, राइट, दिस वन इज गोइंग टू बी 90, भाई ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, तो M डैश OP डैश, एट द सेम टाइम इफ दिस एंगल इज थीटा, this is 90 minus theta, so this is going to be what, theta, वैसे भी यार देखो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल लाइंस हैं ये, और दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी थीटा, सम इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, कहाँ दिक्कत है, लिख देता हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, M डैश P डैश O, that will be equals to theta. Now my question towards you, ये दो जो ट्राइंगल्स आपके सामने है, ये दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात की जा सकती है, ज्योमेट्री थोड़ा सा देख सकते हैं आप। आई हैव टेकन OP एज R, OP डैश इज अगेन R that I have taken here, this angle is theta, this angle is 90 minus theta, if you just observe the triangle, this is 90 degree, this is theta, and this is going to be 90 minus theta. तो कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे इस केस में और क्यों, बता सकते हैं आप। ट्राइंगल MOP, एंड देन M डैश, ओके, M डैश P डैश O, होंगे कि नहीं होंगे, देखिए प्लीज,
सिमिलर होंगे या ट्राइंगल हो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हों, देख लो एक बार। हाँ, एंगल्स एट द सेम टाइम दिस साइड इज आल्सो इक्वल, इसको भी देखिए जरा। आई हैव टेकन OP इक्वल्स टू R एंड OP डैश इक्वल्स टू R, जो मैंने लिखा है इसीलिए यहाँ पे लिखा है OP इज इक्वल्स टू R एंड OP डैश इज इक्वल्स टू R, दिस वन इज सेम। ये तो ठीक हुआ कि तीनों एंगल्स तो सेम हो गए और साथ में एक साइड भी तो सेम है, यहाँ पर कुछ बन रहा है, होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो ठीक है। आई कैन डेफिनेटली राइट देयर। कैन यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी OM डैश एंड व्हाट इज गोइंग टू बी M डैश P डैश, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो क्या कह सकते हैं आप, OM डैश कितना होगा और M डैश P डैश कितना होगा, इतना सोचना पड़ेगा। अरे आई वांट क्या x है क्या y, इतना तो बता दो। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपने बोला दिस वन इज x, so if this one is x, so this M dash P dash is going to be equals to what, x, and this MP is equals to y, ये 90 माइनस थीटा, ये 99, तो ठीक है OM dash will be what, y, मतलब पॉइंट इज P dash के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए, y, x। यहां से मैं बात कर लूंगा ट्राइंगल M डैश OP डैश में, इफ आई टू राइट साइन 90 माइनस थीटा, दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आई एम गिविंग द डेरिवेशन, डेरिवेशन ऐसा नॉट रिक्वायर्ड, मैं आपको लिस्ट बना के दे देता कि अरे ये तो रट लेना, याद करने वाली बात है, समझ लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेरिवेशन, बट इफ इट इज क्लियर इन योर माइंड तो वो बेहतर रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा, हाउ यू आर गोइंग टू राइट साइन 90 माइनस थीटा, ये ट्राइंगल M डैश OP डैश की बात कर रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 कहाँ है, 90 माइनस थीटा क्या है, थीटा क्या, सारी चीजें आपके पास में, बोलेंगे आप दिस इज y, दिस इज x, हाँ इस ढंग से देख लो, M डैश P डैश, भाई ये है ना 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल M डैश OP डैश की बात करें, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90, M डैश P डैश डिवाइडेड बाय व्हाट, OP डैश, दैट इज व्हाट, x बाय r। और दोस्तों इधर से देखें इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OMP में x बाय r क्या है, तो x बाय r इज नथिंग बट cos थीटा, जो इनिशियल ट्राइंगल जो लिया है दैट इज नथिंग बट cos थीटा। Point is, what you are getting? You are getting sin 90 minus theta as cos theta. We are calculating 90 minus theta, which is there in the angle in the first quadrant. Angle in the first quadrant, all the angles remains positive. But sin 90 minus theta is becoming cos theta. Sin 90 minus theta is becoming cos theta. If I have to calculate cos 90 minus theta, देख लीजिए एक बार. Cos 90 minus theta. I am talking about the triangle M dash OP dash. Because our interest is in the 90 minus theta. तो अब जरा लिखें cos थीटा की बात, cos 90 माइनस थीटा, OM डैश डिवाइडेड बाय OP डैश, y बाय r sin थीटा, राइट। एंड दोस्तों लाइकवाइज sin 90 minus theta, you are getting cos theta, cos 90 minus theta, sin theta, tan 90 minus theta, cot theta, these are the results. All the angles remains positive, but sin changes to cos, cos changes to sin, tan to cot, cot to tan, sec cosec, cosec sec. कैसे एक्सप्लेन किया एक बार फिर से देख लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द आइडिया। बुक्स में गिवन है बट एकदम समझ में नहीं आता। देखो
दिस इज द इनिशियल लाइन थीटा एंगल बनाते हुए, दिस इज द टर्मिनल लाइन. आई हैव टेकन ऑन P पॉइंट देयर, OP इज इक्वल्स टू R देयर, OM is equals to X and MP is equals to Y, and I can write from this place sin theta, cos theta, tan theta लिखा जा सकता है. We are interested in the angle of 90 minus theta. So 90 minus theta, this one is theta. तो हमने कहा okay this one is 90 and then again we are coming back, that means this is theta. 90 minus theta angle हमारे को required है. मैंने इसीलिए समझाया आपको कि if I take theta as 30 degree, if it is 30 degree then 90 minus theta will become 60 degree. ठीक है ना. अगेन फिर मैंने I have taken a P dash point there on the terminal line. P dash point से मैंने perpendicular drop किया which meets at M dash. And please do take care कि मैंने यहाँ पे क्या किया है. I have taken OP is equals to OP dash is equals to R. Right, perpendicular drop किया. Then ये theta 90 minus theta जब किया तो this one is clearly 90 minus theta. This is 90, so it is going to be theta. और दो ट्राइंगल्स हमने कंसिडर कर लिए. दोस्त टू ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल MOP एंड M dash P dash O dash, M dash P dash O. और हमने ज्योमेट्री से देखा बोथ द ट्राइंगल्स आर कमिंग कॉन्ग्रुएंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट OM dash is becoming Y and M dash P dash is becoming X. तो coordinates of P dash is coming as in terms of Y, X. सब कुछ लिखा मैंने ठीक ढंग से कौन सा ट्राइंगल किया. And then we have calculated this. ये आपको ध्यान रखना होगा, exactly हमेशा ध्यान रखना होगा, तय बात है ना. All angles remains positive, but sin changes to cos, cos to sin, tan to cot, cot to tan, sec to cosec and cosec to sec. Now look for these two questions. The first one you have to find out the value of tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree and up to tan 89 degree. And second one you have to find out the value of sin square 5 degree plus sin square 10 degree plus sin square 15 degree up to sin square 90 degree. So tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree and tan 89 degree. Observation tan 89 degree. 89 degree can also be written as 90 minus 1. 189 sum is becoming 90. 1 288 will become 90. 387 will become 90. इस बात को हमने ऑब्जर्व किया. तो 1089 कैन बी रिटन एज 10 90 minus 1 degree. तो 10 90 minus theta, cot theta, cot 1 degree. Just now we have discussed. If it is 1088, इससे previous term क्या होगी भाई? लास्ट 1089 is given to you. The previous one is 10 88 degree. So 10 88 degree is equals to 10 90 minus 2, or 10 90 minus theta is nothing but cot 2 degree. 10 87 degree can be written as directly cot 3 degree. ठीक है, आप ये ऑब्जर्व करोगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा विल बिकम 1, tan 1 डिग्री, और ये tan 89 डिग्री कैंसिल होगा क्योंकि tan 89 डिग्री इज इक्वल टू cot 1 डिग्री. tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री कैंसिल हुआ. tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री कैंसिल हुआ भाई. tan थीटा इंटू cot थीटा विल बिकम 1. tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री कैंसिल होगा. बोले सर सारे कैंसिल हो गए. In between there is going to be one more term there. Which term? यहाँ पर बीच में कहीं एक टर्म होगी and that term is tan 45 डिग्री. बाकी सारी पेयरिंग होके 90 बनेगा तो ठीक है, but tan 45 itself is 1. So रिजल्ट की बात की जाएगी, that is going to be equals to 1. Final result is 1. So 89 degree is 90 minus 1, 88 degree is 90 minus 2, 87 degree is 90 minus 3, or tan 90 minus theta is cot theta, or tan theta into cot theta will become 1. But in between there is going to be a term which is tan 45 degree, which is the value of that is 1. Second one, if you observe the second,
साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो 5, 10, 15, 20 अप टू 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू 1 है, दैट इज नोन टू अस। साइन स्क्वायर 90 तो हमें पता है। साइन स्क्वायर 90 से प्रीवियस टर्म क्या होगी? साइन स्क्वायर 90 से प्रीवियस टर्म क्या है? इफ यू ऑब्जर्व हियर 5 5 के डिफरेंस से चल रहे हैं। 5 डिग्री 10 डिग्री बात नहीं, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री एंड अप टू 90 डिग्री। तो ये लास्ट टर्म में इट इज साइन स्क्वायर 90, साइन 90 इज 1। उससे प्रीवियस टर्म क्या होगी? साइन स्क्वायर 85, साइन 85 डिग्री। ठीक है, तो इससे भाई साइन 85 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज -90 -5। आर यू गेटिंग दिस? भाई साइन स्क्वायर 90 इज द लास्ट टर्म देयर, तो उससे प्रीवियस होगी साइन स्क्वायर 80 भी होगा, साइन स्क्वायर 85 भी होगा और साइन स्क्वायर 90 भी होगा। दैट समेशन इज बीन रिक्वायर्ड हियर। तो साइन 85 डिग्री, साइन 90 -5 cos 5 डिग्री। कैंसल नहीं हुआ, इट्स नॉट कैंसलिंग देयर। साइन स्क्वायर 90 इज 1, ये तो फिक्स है वैल्यू, दैट इज 1। 5 और 85, जस्ट सी द पेयरिंग, ये 5 और 85, ये 90 बन रहा है इसका सम ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 विल बिकम 1, बिकॉज साइन 85 किसके बराबर है? cos 5 के बराबर है। समझना पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। द सेकेंड वन लाइकवाइज, अगर आप देखो यहां पर तो साइन 80 डिग्री, अभी हिंट मिल रही है आपको, आइडिया मिल रहा है क्या हो रहा है? ये 85 से प्रीवियस टर्म है साइन 80। साइन 80 को क्या लिख सकते हो आप? साइन 90 -10, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 1, राइट? ये सारी टर्म तो एडिशन में है। मैं इसी को इसी ढंग से लिखता हूं, इस ढंग से पेयरिंग करी मैंने, तो प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, this one will become 1, this one will become 1. How many such pairs are there? 585। ये समझ में आ रहा है ना क्यों? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। भाई साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये सब 1 बनेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे, कितने पेयर्स हो गए ऐसे? 8 पेयर्स हो गए। ये कौन कौन से 8 पेयर्स हो गए? ये 585 हो गया, 1080 हो गया। केवल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना, पूरा पूरा लिखने की भी आवश्यकता नहीं, बट 1575 का एक हुआ, ठीक है, 2070, 2565, 3060, 3555, 45 बच जाएगा। मतलब ये होगा कि हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6, और ये सुनिए 7 and 8। भाई ये तो 2 तो अपनी जगह लिखे ही है मैंने। तो दीज आर द 8 पेयर्स विच आर बिकमिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो 1 1 1 8 टाइम्स इज बिकमिंग 8। बट डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस साइन स्क्वायर 90, दैट इज ऑलरेडी 1। बट स्टिल साइन स्क्वायर 45 इज देयर इन बिटवीन। साइन स्क्वायर 45 बीच में है अभी। वन बाई टू, साइन 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, 9.5। फिर से देख लीजिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 अप टू साइन स्क्वायर 90, दैट समेशन इज बिन रिक्वायर्ड।
साइन स्क्वायर 90 इज 1, दैट्स फाइन. द प्रीवियस टर्म इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर 85. तुरंत हमने ऑब्जर्व किया दैट साइन 85 कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 5, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, एंड साइन 85 डिग्री इज बिकमिंग कॉस 5 डिग्री. सो हम ये पेयर बना पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 दैट इज बिकमिंग 1, क्योंकि साइन स्क्वायर 85 इज कॉस स्क्वायर 5, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1. सिमिलरली साइन 80 डिग्री कैन बी रिटन एज कॉस 10 डिग्री, तो ये साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 विल बिकम 1. ऐसे कितने पेयर्स होंगे? तो ऐसे हमने देखा यहाँ पे टोटल 8 पेयर्स आर देयर. पूरा नहीं लिखते हुए हमने लिखा है 15 डिग्री 75 डिग्री होगा, 20 70 दोज वी हैव रिटन देयर. 8 पेयर्स आर देयर. साइन स्क्वायर 90 इज देयर, दैट इज 1, बट साइन स्क्वायर 45 इज ऑल्सो देयर इन बिटवीन. उसको भूलने का नहीं, क्योंकि ऑप्शंस वुड बी देयर. आपने कैलकुलेट तो करा और एक आध छोड़ दिया आपने, तो गलत रिजल्ट होगा. 8 पेयर्स की जगह 7 पेयर्स किए, साइन स्क्वायर 45 भूल गए, साइन स्क्वायर 90 भूल गए, तो गलत रिजल्ट आएगा. तो 8 पेयर्स के 8 प्लस 1 फॉर साइन स्क्वायर 90 एंड साइन स्क्वायर 45, दैट विल बिकम 1/2. दैट विल बी द रिजल्ट.